Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 10th, 11th and 12th of May. The session will be quite interesting students. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. This video is quite beneficial for all the students preparing for competitive exams. Students, in this video we will be talking about Operation Sindoor. Then we will be talking about 97% of the claim settlement ratio under Pradhan Mantri Fiscal Bima Yojana. Then we will be talking about Atal Pension Yojana in this video. Next thing we will be talking about CGHS has been expanded, or Government of India has notified for the expansion of this CGHS for startups. Then we will be talking about Coal Ministry, which has signed a coal gasification plant development and production agreement. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. We are talking about Operation Sindoor. This Operation Sindoor was an operation that was launched by India against the Pahalgam attack that took place. Right, in this Pahalgam attack, almost 26 individuals, Indians, lost their life. Right, and this Operation Sindoor, it was carried out by India on the terrorist camp. Right, almost on 9 terrorists camps that are in Pakistan. Right, then first thing, remember, these are the locations, these are the 9 locations where the Operation Sindoor carried out this attack. And this attack here, Indian Air Force used fighter jets such as your Rafale, Mirage 2000, Sukhoi 30, Mark 1 fighter jet. These were involved in this attack. Right, and 24 missile strikes took place in these 9 locations. Correct? Take a note of this, important students. Right, then apart from this, here you can see these are the missiles, and these 9 terror locations which were targeted in Pakistan. These are the terror camps that are operated by groups such as your Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Apart from this, 2 women officers, that are Colonel Sofia Qureshi and Wing Commander Vomika Singh, they led the official media briefing on Operation Sindoor, marking a significant moment in the India's military history. Apart from this, bombs such as your Spice 2000 bombs were used here for carrying out the accurate strike on the targets. Correct, and Sukhoi 30s use these bombs to carry out the attack. Apart from this, Scalp missiles, Meteor missiles, BrahMos missiles, anti-tank guided missiles were used, loitering munitions were used, Sudarshan Chakra missile defense system was used, that is your S-400 system, to intercept all the incoming missiles and drones from Pakistan side. Right, so this is all about Operation Sindoor that is still going on, and the fight between India and Pakistan is still going on. Today there was a news that there might have been a ceasefire, but Pakistan violated this ceasefire, and still we are seeing that the war is going on. Let's see what happens in further. Moving on students, next is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare released a data that states 90% of the claims settled under Pradhan Mantri Fiscal Bima Yojana. Right, we are talking about this. Then 3 Indian states has achieved 100% claim settlement under this scheme. Pradhan Mantri Fiscal Bima Yojana, or Prime Minister Fiscal Bima Yojana.
Correct. So it is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. They presented a data in the Lok Sabha that stated that almost 97%, that is 1,34,353 crore rupees have been reported that has been disbursed under Pradhan Mantri Fiscal Bima Yojana. And the 3 states that have achieved 100% claim settlement, that are including Goa, Chhattisgarh and Tamil Nadu. Goa is your union territory. Correct. So if we see the highest, that top 3 state that filed the highest claims under scheme in the last 6 years, that includes Maharashtra, filed claims worth around 33,259 crore rupees, followed by Rajasthan and Madhya Pradesh. Then top 3 state paid highest claims during the last 3 years, that include Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan. Right. If we talk about this Pradhan Mantri Fiscal Bima Yojana, the scheme was launched in 2016 by Prime Minister Narendra Modi. It is a flagship crop insurance scheme in India under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and it has completed 9 years recently on 18th of Feb. And that is the reason you can see here that this scheme, this data was released by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Next, students, we are talking about Atal Pension Yojana that has secured the retirement for India's unorganized sector. This Atal Pension Yojana, this is a flagship social security scheme of the Government of India under the Ministry of Finance, launched on 9th of May in 2015. Right, and this scheme came into force on 1st of June in 2015, and it is to provide social security to the unorganized sector workers. Correct. Take a note of this. This scheme is being administered by whom? It is administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority, that is PFRDA, and it is managed under the National Pension System architecture. Initially, this Atal Pension Yojana was open for all the citizens aged between 18 to 40 years. Later, individuals paying income tax are not eligible to join this scheme starting from 1st of October 2022. Right. If we talk about PFRDA, who is the chairperson here? Shiva Subramaniam Ramanji, headquartered in New Delhi, established in 2013. Moving on. Next, Government of India notified the expansion of CGSS to increase capital mobilization for India. I repeat, for startups in India. Right. So, Government of India, or we can say DPIIT, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry, has notified the expansion of CGSS. What is CGSS? That is your credit guarantee scheme for startup. What this will do is this will provide finance. This will provide capital to the startups that are required for their operation. The expansion increases the ceiling on guarantee cover per borrower under the scheme from 10 crore rupees, which has increased to 20 crore rupees. The extent guaranteed cover also provide increase of 80% of the total amount in default for loan of up to 10 crore rupees and 75% of the amount in default for loan amount exceeding 10 crore rupees. Correct. Apart from this, there is annual guarantee fee for startups in 27 champion sectors that has been reduced to 1%, that was earlier 2%. The champion sectors, they have been identified by the Government of India under Make in India initiative, where these sectors will be more focused upon and the funding will be prioritized in these sectors. Right. Then if we talk about this credit guarantee scheme, this was launched by the Government of India on 6th of October in 2022 with a fixed corpus for providing credit guarantees to loans extended to these startups. Moving on, Coal Ministry has signed a coal gasification plant development and production agreement. Right, I repeat, it is Ministry of Coal. They signed this coal gasification plant development and production agreement with selective applicants under the category 2 of the coal gasification financial incentive scheme. Right, and this coal gasification, basically it is a process that converts carbon based raw material into coal like fuel gas or syngas, that is your synthetic gas. Correct, and this is considered a cleaner option as compared to directly burning the coal. This FIS, financial incentive schemes for coal gasification, it was launched with an outlay of 8500 crore rupees and it was launched in 2024. The aim of which is to achieve 100 million tons of coal gasification by 2030. Moving on, next, Adani Green Energy Limited. Right, this is Ahmedabad, Gujarat based Adani Green Energy Limited. They became the world's first renewable energy IPP to turn water positive. What does this water positive means? This means in an organization, the amount of water that is being used, right, it is
or basically we can say what is this water positive. That means, say for example, 100 million tons of water is being used in this plant for the operations, right? Water positive means that this amount has exceeded, or now it has become 110 million, correct, what million liters, right? That means now the amount of water that was used for the operation in the plant, right, now this company is giving back to the environment more water as compared to it, right? That means water positive refers to a state where an entity restores more fresh water to the environment than the amount it uses in their operation. So Adani Green Energy Limited, they became the world's first renewable energy IPP to turn water positive. IPP, it is your independent power producer. I repeat, independent power producer to turn water positive. Correct. Next, if we talk about Adani Green Energy Limited, who is the chief executive officer here? Ashish Khanna. And where is the headquarter? The headquarter is in Ahmedabad, Gujarat. And it was established in 2016. Next news. Next, we are discussing about India and Chile. Together, we have signed a term of reference, that is TOR, for CEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement. This is a significant advancement in the bilateral relation and bilateral trade of these two countries. The first round of the negotiation for the CPA, it is scheduled to begin from 26th of May 2025. Right, and take a note of this. This is very important, right? This term of reference, this was a plan that was signed for CEPA between India and China or Chile earlier in, or we can say a PTA, that is Preferential Trade Agreement, was signed between India and Chile in 2006, and this term of reference for this CPA is the advancement of this PTA. Correct? Take a note of this. And here we will be seeing under this the economic cooperation and trade will be benefiting, and here the focus will be on MSMEs, on critical minerals between these two nations. What is the capital of Chile? It is Santiago. It is Santiago. Next is Australia, UK universities. They are setting up campuses in Navi Mumbai. I repeat, Maharashtra's Government City and Industrial Development Corporation, they have signed an agreement with two leading universities from Australia and UK to set up their campuses in Navi Mumbai. The agreements were signed with the University of York of UK and University of Western Australia, and they will be setting up their campuses in Navi Mumbai. They will be spending close to 1500 crore rupees each for their campuses in Navi Mumbai. Next is Karnataka based startup. They have launched AI based agriculture application SBOF Agro Smart, right? That is SBOF Agro Smart Private Limited. They have officially launched India's first AI powered all-in-one agriculture application that is aimed at transforming farming practices through integration of artificial intelligence, IoT, drones, right? They will be collecting data from satellites and they will be analyzing it, utilizing it to give the meaningful output to the farmers. Correct? And here the farmers across India, they face various uncertainties that includes your climate change, market price fluctuation, pest, disease outbreak, and many more, which can be solved with this AI application. Next is ITER has achieved a major milestone in the world's largest fusion project with India's help. Now, what is this ITER? It is International Thermonuclear Experimental Reactor. This is the world's largest nuclear fusion project that is located in southern France. Right? And it has achieved a major milestone with the help of India, and this is for the development of their main magnet system. Right? Our country India here is playing a very important role to confine super hot plasma particles that combine and fuse to release energy. This ITER project, it is backed by United States of America, China, Japan, Russia, European Union, and involves more than 30 countries that assemble the world's most powerful magnet. Correct? Take a note of this. Moving on. Next is Asian Development Bank's 58th AM annual meeting of the boards of the governors was held in Milan, Italy. This is the direct question, friends. You need to know the location. It was held in Milan, Italy. Which edition was this? It was the 58th annual meeting of the board of governors that was held in Milan, Italy. Correct? Take a note of this. Then there was a theme for this, theme being sharing experience, building tomorrow.
right? And Masato Kanda, the president of Asian Development Bank, inaugurated the 58th annual meeting of the Board of Governors of Asian Development Bank. And also Asian Development Bank has committed $5 billion in the form of loans, grants and other assistance to India in 2024. Where is the headquarter of Asian Development Bank? It is in Manila, Philippines. And there are 69 member nations here. It was established in 1966. Also, apart from this, Asian Development Bank has recorded the highest net income allocation in history at 1.539 billion for 2024. This marks the highest net income allocation ever recorded nearly in 60 years long history of Asian Development Bank. Next is Asian Development Bank has also pledged additional $26 billion to food and nutrition security in the Asia Pacific region. Correct? Next is Quad countries. They have partnered to conduct tabletop exercise in Hawaii to launch the IPLN. What is this IPLN and what are the Quad nations here? First thing first, if we talk about Quad, that includes your India, Australia, Japan and United States of America. These are the Quad members, right? Here you can also see in the image. Correct? And recently they have partnered together to conduct a tabletop exercise, that is TTX. This will be held in Hawaii. It will be from 28th of April to 2nd of May. Correct? And important thing to remember, this exercise is to launch IPLN. IPLN is your Indo-Pacific Logistic Network. As the name suggests, logistic. What this will do is this will bring the logistic capabilities of the Quad nations together, and it will support also the civilian disaster response in the Asia or Indo-Pacific region. This will be a faster, coordinated and efficient deployment of human assistance and disaster relief exercise, that is HEDR. Correct? And it will promote a better, robust and create a good logistic network between these countries. Right? Very important, students, take a note of this. Your homework is to tell me the name of the exercise that is conducted by the Quad countries together. Moving on, next is Cardinal Robert Prevost, as you can see him in the picture, has been elected as the new Pope in the Vatican City. Right? We know that Pope Francis recently passed away on 21st of April in 2025, and he will be the successor here. Cardinal Robert Prevost will be the successor here. Correct? He has been named as Pope Leo 14, right? And he became the first Pope from United States of America. Right? Take a note of this. Very important news. Can be asked. Next is CBI Director Praveen Sood granted 1-year extension recently. I repeat, ACC has approved 1-year extension to Praveen Sood, that is a 1986 batch IPS officer from Karnataka cadre, and as he is currently the Director of Central Bureau of Investigation, and his term has been extended by 1 year till May 2026. Next is Science and Tech. GRSE, that is your Garden Reach Shipbuilders, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. They have delivered Arnala, that is India's first ASW SWC to Indian Navy. What is this ASW SWC? ASW SWC is your anti-submarine warfare shallow watercraft. Right? So coming back, it is GRSE that delivered this Arnala. This is the name of the India's first of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft to the Indian Navy. That means 8 will be developed here, and among the 8 it is the first here. This new anti-submarine warfare shallow watercraft, it is named after an island with the historic Fort Arnala located in Vasai, Maharashtra. Right? And this Arnala, it is 88% made from indigenous content. This is 77.6 meter long, 10.5 meter wide, and is the largest Indian naval ship propelled by the diesel engine water jet combination. Correct? Very important, students. Take a note of this. One more thing, remember, if we talk about GRSE, right? GRSE in 2022, it was honored with Raksha Mantri Award for designing the Arnala, described as the most silent ship. So this question can be asked, which is the India's most silent ship? It is Arnala. Next question, India's most silent ship was designed by which organization? It is GRSE. And for the most silent ship designing, which company was honored with the Raksha Mantri Award? It is GRSE. So remember all these questions. Who is the chairman and managing director of GRSE? PR Hari. Next students, Sarvam AI has launched Bulbul V2, that is a text-to-speech model with 11 Indian languages.
text to speech model, right? Take a note of this. This will be supporting 11 Indian languages. It has been named as Bulbul V2. This is an advanced AI text to speech, right? This will enhance the digital voice applications with natural sounding speech and authentic Indian accents. And also the model supports the following Indian languages, that is Hindi, Marathi, Punjabi, Odia, Tamil, Bengali, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati and English. Moving on, next is related to obituary students. Former F1 driver, Le Mans champion Johann Richard Mas recently passed away. I repeat, former F1 driver and Le Mans champion Johann Richard Mas, he recently passed away at the age of 78 in Cannes, France, born in 1946 in Germany. Moving on to important books and authors, students. Koinian Sheriff M's book, that is Johnson and Johnson Files, The Indian Secrets of a Global Giant. It has been recently released, authored by Koinian Sheriff M. He is the national health editor at the Indian Express. He released this book, and this book is a comprehensive investigation into India's significant medical device controversies. This book was published by New Delhi-based Juggernaut Books. Next is important days. Time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War, observed on 8th and 9th of May. Correct? Remember, this day is basically observed on 8th and 9th of May to honor all those victims of the Second World War that took place from 1939 to 1945. That include more than 40 million civilians and 20 million soldiers who lost their life. This year in 2025, it was the 80th anniversary of the end of the Second World War. This day is observed by United Nations General Assembly. Correct? This day was first observed in 2005, and it is the 60th anniversary for this day and 80th anniversary for the end of World War II. Next, students, that's all for the day. Now let's move to revision part that will be beneficial for your learning, and then we'll proceed to the homework section. फिर आ जाते हैं किनको अभी नॉमिनेट किया गया इंडिया के द्वारा इन अप्रैल फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो एट ITU एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. तो एम रेवाठी, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. राइट, यहाँ पे हम देखेंगे नई टेक्नोलॉजी जैसे 5G, 6G, स्पेस, ब्रॉडबैंड, GPS, एविएशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके ऊपर काम किया जाएगा. इवन आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा या हम आगे देखेंगे कि चाइना ने 10G लॉन्च कर दिया है. राइट, तो इसको हमको काउंटर भी करना पड़ेगा, हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो करना पड़ेगा. राइट, उसके ऊपर काम किया जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन्होंने एक्वायर किया 90.5% स्टेक ऑफ अप राइजिंग साइंस फॉर 2706 करोड़ रुपीज. क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन केयर ब्रांड जो कि ओन किया गया है अप राइजिंग साइंस के द्वारा. तो वो है मिनिमलिस्ट. राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑफिशियल विजिट टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया कि 2 ऑयल रिफाइनरी सेटअप की जाएंगी इंडिया में, जो इंडिया की एनर्जी जनरेशन को बूस्ट देता हुआ देखेगा. इसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड इन अप्रैल व्हाट वाज द टोटल आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब इंडिया से जो पैसा बाहर गया, राइट, इन फॉर FY25. तो क्या था उस रेमिटेंस का वैल्यू, वो है आपका $27.02 बिलियन और $100+ बिलियन हमने रिसीव किया इन रेमिटेंस, इन इनवर्ड रेमिटेंस. राइट, एंड स्टिल वी आर द बिगेस्ट रेमिटेंस रिसीवर इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल 2025 HDFC बैंक लिमिटेड, ये थर्ड इंडियन कंपनी बन गई जिन्होंने सरपास किया अब मार्केट कैप ऑफ डैश आफ्टर RIL एंड TCS. तो 15 लाख का मार्केट कैप इन्होंने क्रॉस किया है. नेक्स्ट, RBI इन्होंने इशू किया डायरेक्टिव मैंडेटिंग ऑल द बैंक्स दैट वो अपना डिजिटल ऑपरेशंस जो हैं वो .bank.in पर शिफ्ट कर लें. राइट, जैसे पहले होता था .gov.in, .gov.url, या फिर कोई भी कंपनी हो गई www.xyz. आपका अलग अलग डोमेन नेम्स होते थे. अब उनको बोला गया कि सभी बैंक्स को एंड इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, कि आप .bank.in पे शिफ्ट कीजिए. राइट, एंड इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है वो क्या रखी गई है, 31 अक्टूबर 2025. नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ कैंपबेल विल्सन हु हैज़ बीन सर्विंग एज द चेयरमैन सिंस जून 2022. तो कौन है, वो है निपुण अग्रवाल. राइट, ये नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ कैंपबेल विल्सन.
नेक्स्ट, अडानी ग्रुप बैक्ड अंबुजा सीमेंट, इन्होंने 7.76 करोड़ रुपीस की शेयर इक्विटी शेयर एक्वायर किए ना कंपनी जिसको प्रीवियसली सीप के बिरला ग्रुप मेंशन कर रहा था। उस कंपनी का नाम बताओ। वो है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, राइट। एंड नाउ अंबुजा ओन्स 46.66% ऑफ द OCL एंड इनके पास फुल कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि यह मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। Next, India dispatched the second batch of supersonic cruise missiles to the Philippines under a $375 million deal signed in 2022। उस इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर कंपनी का नाम बताओ जो इन्वॉल्व थी इन दिस अग्रीमेंट। इट इज़ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। एंड फिलीपींस पहला नेशन बन गया जिन्होंने इंपोर्ट किया है इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को। नेक्स्ट, चाइना ने अचीव किया मेजर माइलस्टोन इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। हमने डिस्कस किया था, इन्होंने 10G टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को अचीव कर लिया है हेबी प्रोविंस में इन सुनान काउंटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट होस्टेड द इनॉग्रल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑन काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ऑन 21 एंड 22 ऑफ अप्रैल 2025, राइट। तो उस कंट्री का नाम बताओ जो कि होस्ट किया गया, जिसने होस्ट किया इनॉग्रल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट। तो कौन सी कंट्री है? वो है हमारी कंट्री इंडिया, राइट। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए ये हमने होस्ट किया था। नेक्स्ट, इन अप्रैल द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिपोर्ट किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्गो मूवमेंट ट्रेड हुआ है कितना? 145.5 मिलियन मैट्रिक टन का इन FY25, राइट। एंड ये 18.1 मिलियन मैट्रिक टन से बड़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस टाइगर रिजर्व का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया एज 107th नेशनल पार्क बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी। ये ओडिशा का सेकेंड नेशनल पार्क रहेगा लेकिन लार्जेस्ट ऑफ ओडिशा, बिगेस्ट ऑफ ओडिशा रहेगा ये, राइट। क्या नाम रहेगा इसका? ये है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इट इज़ नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 2025 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ की गई अप्रैल 2022 में। तो इसमें से हम देखें तो IISc बेंगलोर इस लिस्ट में नहीं आता है, राइट। शिगुआ यूनिवर्सिटी पहले पे, सेकंड पे पेकिंग, थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फोर्थ पे नैंगियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ पे आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, राइट। तो ये 5 हैं। IISc बेंगलोर टॉप 5 में नहीं आता। इसके बाद आ जाते हैं LDVs म्यूचुअल फंड। इन्होंने इंडिया का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जो कि ऑफर कर रहा है एक्सपोजर टू BSE इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स। इसका NFO खुल जाएगा 25 अप्रैल को, खुल गया है, 9 अप्रैल तक रहेगा। एंड इसमें अगर आप देखें SID जो होता है, SID होता है जिसमें सारा डाटा लिखा गया होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट दिस म्यूचुअल फंड और दिस ETF एंड एवरीथिंग, करेक्ट। तो इसमें जो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है SID, उसमें लिखा गया है कि अगर यूनिट्स को आप 30 दिन से पहले रिडीम कर लेते हैं तो आप पे एग्जिट लोड भी लगेगा ऑफ 0.1%। Next, who among the following Indian industrialist was inducted to the World Bank Group's Private Sector Investment Lab in April to support private sector growth and job creation in the developing countries? तो कौन है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको इंडक्ट किया गया वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक का पार्ट बन गए हैं? वो हैं सुनील भारती मित्तल। एंड ये लुक आफ्टर करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर कि इन्वेस्टमेंट से इन इंडस्ट्री, राइट। हम देखेंगे कि जॉब क्रिएशन होता हुआ दिखेगा। इस जॉब क्रिएशन को कैसे बढ़ाना है यूजिंग वेरियस टैक्टिक्स, अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लॉन्च करके, राइट। एंड जॉब्स जनरेट करनी है हमें डेवलपिंग नेशंस में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल ACC इन्होंने मेजर डिसीजन दे मेड अ मेजर सीनियर लेवल की ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट भुवनेश कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI एंड केशव कुमार पाठक, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं एंड इनको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है इन कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, मेंशन द चेस ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी 5th लेग ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स को जीता 2024-25 को, जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो कौन है ये? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन जो कि फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ इसरो एंड अ पद्मा अवार्डी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 84। तो यहाँ पे ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है। B कह रहा है ही वन द पद्मा विभूषण अवार्ड जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द ईयर 2001,
राइट, बिल्कुल सही है, सब सही है, लेकिन ईयर गलत है, ये सन 2000 होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। इट इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन 25 ऑफ अप्रैल अक्रॉस द ग्लोब, ताकि मलेरिया जो हमारी किससे होता है, आपके मॉस्किटो बाइट से होता है, राइट। तो इसका जो फैलना होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से जो ये होता है, राइट, यही क्वेश्चन में पूछा गया कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो कि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, जिससे हम यहाँ पे अपने शरीर में मलेरिया का इफेक्ट होता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डेवलप किया हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस सक्सेसफुली टेस्टेड इन अप्रैल 2025। तो चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ये हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को यहाँ पे अभी डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ यूनेस्को सपोर्टेड इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल 2025 से 27 टर्म के लिए। तो जितेंद्र मिश्रा यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेम द कंट्री दैट लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किट फॉर डिटेक्टिंग द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विकल कैंसर लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025। तो उस कंट्री का नाम बताओ दैट लॉन्च देयर फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो वो है इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट टाइटल इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025। इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है दैट इज लिविंग ऑन लेस देन 2.15 पर डे हैज़ ड्रॉप्ड टू व्हाट परसेंटेज 2022-23 से, जो कि 16.2% थी 11-12 में। मतलब 11-12 में जो 16.2% थी वो 2022-23 में कितनी रह गई है, कितनी पॉवर्टी रिडक्शन हमें देखने को मिली है, 2.3% की रिडक्शन हमें देखने को मिली है। एंड ये रिपोर्ट बताती है 7.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से लिफ्ट किया गया है इंडिया में। नेक्स्ट हु वॉज कन्फर्ड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फिजी इन अप्रैल 2025 फॉर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर इन फिजी। तो किनको कन्फर किया गया था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से, तो वो है श्री मधुसूदन साई। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम किया द लीड रोल ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स बाय प्लेसिंग इट एट अ स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स यूजिंग स्पेस बेस्ड एसेट्स इन अप्रैल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अज्यूम किया लीड रोल, वो है इसरो ने यहाँ पे लीड रोल अज्यूम किया। 6 महीने के लिए रहा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं कि डिजास्टर्स के टाइम ग्लोबली हम एकजुट होकर उससे टैकल कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने किन को अपॉइंट किया एज देयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो अनंत अंबानी को इन्होंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, राइट। मुकेश अंबानी के बेटे हैं, करेक्ट। एंड नेक्स्ट है कि पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने सरपास किया है टोटल इक्विटी कितना, 10 लाख करोड़ रुपीज़ की टोटल इक्विटी सरपास करने वाली ये पहली इंडियन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द लेड ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड। ये बुक रिलीज़ की गई अप्रैल में, जिसका फोकस रहेगा ऑन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज़, तो वो है फली सैम नरीमन। नेक्स्ट, इनको पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2007 में। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 26 ऑफ अप्रैल ईच ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिज़ाइंस एंड टू सेलिब्रेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वीपो, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। इस बार इसकी थीम भी थी एक म्यूजिक एंड आईपी फील द बीट ऑफ आईपी, एंड 2001 से हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट इनिशिएटेड इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इन अप्रैल। तो कहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इन्होंने लॉन्च किया स्पेशल रिटेल लोन कैंपेन निर्मन 2025 इन अप्रैल 2025। तो किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंडिया में लॉन्च किया ये स्पेशल रिटेल लोन कैंपेन निर्माण को, तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, एंड ये इसका एम रहेगा कि बेसिकली हेल्प होम बायर्स, कार बायर्स, स्टूडेंट्स जो कि लोन लेना चाहते हैं, राइट, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पे इनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, ऑन 28 ऑफ अप्रैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन की एक डील वर्थ कितना अमाउंट विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। तो ये डील जो थी आपकी 64,000 करोड़ रुपए की ये डील थी। एंड 26 राफेल एम, ये एम है मैरीटाइम के लिए, ये फाइटर जेट्स दिए जाएंगे किनको, इंडियन नेवी को। लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी विच इज इंडियाज
58th Tiger Reserve and name the location where is it located. Second question, tell me recently with Starlink which two companies has partnered to provide satellite internet in India. Third question, tell me recently Ayushman Bharat scheme was expanded to Delhi. What is the cover under Ayushman Bharat scheme? What is the cover of insurance, right? And name, tell me the scheme also. Explain this scheme in the comment. I'll be looking at the answers. Fourth question, tell me recently which Indian naval ship participated in the Mauritius National Day celebration. I repeat, in the Mauritius National Day celebration for 2025. Name that Indian naval ship that took part in that day. Correct. Then apart from this, tell me recently who has been appointed as the brand ambassador for Federal Bank, right? She's an actress. I'll give you that hint. Correct. So these are your important homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10, 11 एंड 12 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं, तो इस सेशन को ज़रूर देखा करो। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। देन हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना की। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा रहा है, कैसे उनको फंडिंग प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि वो ग्रो कर सके। देन हम बात करेंगे कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट की, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा साइन किया गया है। इन सभी चीज़ों को एंड मैनी मोर न्यूज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ये ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के द्वारा अटैक किया गया है 9 प्लेसेस पे। 24 मिसाइल से अटैक किया गया था पाकिस्तान में, एंड ये टेररिस्ट कैंप्स थे जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान में ये अटैक करा। ये जो सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर, बेसिकली हमने याद है, अगर आपको याद हो तो पहलगांव में 26 इंडियंस की डेथ हो गई थी, राइट। एंड वहां पे जिन फीमेल्स ने अपने हस्बैंड को गवाया, जिन्होंने हस्बैंड की डेथ हुई, राइट, उनको ऑनर करने के लिए ये ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, राइट। एंड ये जो 9 प्लेसेस हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान में है, राइट, जहां पे यहाँ ये अटैक्स किए गए। हम देखेंगे इस वीडियो में कि किन मिसाइल से, किन फाइटर जेट से यहाँ पे अटैक किया गया, राइट। सबसे पहले तो ये देख रखते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर टू ऑनर द वीमेन जिन्होंने अपने हस्बैंड को गवा दिया इन द पहलगांव टेरर अटैक, राइट। एंड यहीं पे अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने कौन कौन से फाइटर जेट्स का यूज किया था इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राइट। तो राफेल,
मिराज 2000 एंड सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स का यहाँ पे यूज किया गया। इसी के अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखेंगे कि जो ऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग होती है ना, उसके दौरान 2 वीमेन ऑफिसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी एंड वोमिका सिंह, इन्होंने लेड किया था इसका ऑपरेशन सिंदूर का ऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग को। इसी के अलावा ये जो अटैक हुए थे 9 टेरर लोकेशंस पे, ये और लोकेशंस टेरर कैंप्स ऑपरेट किए गए थे बाय लश्कर ए तैयबा एंड जैसे मोहम्मद के द्वारा। इसके अलावा आप ये वो 9 लोकेशंस देख सकते हैं जहां पे इंडिया ने अटैक करा था, राइट। ये सारी लोकेशन पे ऑपरेशन सिंदूर, राइट, एंड 24 मिसाइल से यहाँ पे अटैक किया गया था। अगर यहाँ पे हम मिसाइल्स देखें तो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट की मदद से। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बॉम्ब्स या मिसाइल्स यूज की थी जैसे AASM हैमर मिसाइल, देन स्कैल्प मिसाइल का यूज किया गया था, राइट। इसको स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं। देन मीटियोर, राइट, जो कि है बेसिकली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस मिसाइल्स का यहाँ पे यूज किया गया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का यूज किया गया था जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यहाँ पे यूज किया गया था। सुदर्शन चक्र जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक है, मार्क करेंगे ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कल देखा था स्टूडेंट्स की यहाँ पे सीज फायर की भी न्यूज आ गई थी, लेकिन सीज फायर को वॉयलेट किया गया पाकिस्तान के द्वारा एंड इंडिया के ऊपर फिर से ड्रोन का हमला किया गया, राइट। लेट्स सी ये आगे कहाँ जाता है, इंडिया क्या रिएक्ट करता है, क्या डील साइन होती है, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया। ये डाटा बताता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि एक एग्रीकल्चर या फिर हम बोले क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, राइट। इसका डाटा बताता है कि 97%, जो कि आ जाता है 1,34,353 करोड़ रुपीस, राइट, इतना यहाँ पे क्लेम यहाँ पे देखा गया है इस स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर। 3 स्टेट्स ने यहाँ पे टॉप किया इन द 100 क्लेम सेटलमेंट अंडर दिस स्कीम, जो कि गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड तमिलनाडु रहता है, राइट। हाईएस्ट अगर डाटा देखें, सबसे ज्यादा टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं जहां पे हाईएस्ट क्लेम्स को फाइल किया गया इन द लास्ट 6 ईयर, तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा क्लेम्स देखने को मिले जो फाइल हुए, वर्थ 33,259 करोड़ रुपीस, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश। एंड हाईएस्ट पेड क्लेम्स कहाँ गए, तो राजस्थान को सबसे, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा क्लेम्स सेटल हुए जो कि थी 32,628 करोड़ रुपीस, देन मध्य प्रदेश का एंड देन राजस्थान का। ठीक है, चलिए फिर इसी के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसको 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड 2025 में 18 फरवरी के इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। मूविंग ऑन, अटल पेंशन योजना की बात करें तो इट इज सिक्योरिंग रिटायरमेंट फॉर इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये अटल पेंशन योजना ये एक बेसिकली फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। एंड ये 1 जून 2015 को लागू हो गई थी, राइट। 9 मई को लॉन्च किया गया था एंड 1 जून को जाके ये लागू हो गई थी। ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। इस स्कीम को एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जा रहा है, PFRDA के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इनिशियली 18 से 40 साल के बीच में जो भी इंडिविजुअल्स थे वो स्कीम में एनरोल हो सकते थे, वो सिटीजन्स एनरोल हो सकते थे, लेकिन फिर 1 अक्टूबर 2022 से ये बोल दिया गया कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओनली द इंडिविजुअल्स जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर मैं PFRDA की बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे, शिवसुब्रमण्यम रमन, एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 2013 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया एक्सपेंशन ऑफ CGSS टू इंक्रीज द कैपिटल मोबिलाइजेशन फॉर किसके लिए, फॉर स्टार्टअप्स, राइट। देखो स्टार्टअप्स को अगर हमें ग्रो करना है ना तो डाउन टाइम के दौरान हमें उनके ऑपरेशंस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकें एंड वो बंद ना हो जाए, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आई, जैसे द एक्सपेंशन इंक्रीजेस द सीलिंग ऑन गारंटी कवर पर बोरोवर अंडर द स्कीम फ्रॉम 10 करोड़ रुपीज टू 20 करोड़ रुपीज। देन एक्सटेंट ऑफ गारंटेड कवर प्रोवाइडेड also has been increased to 85% of the amount in default for loan of up to 10 crore and 75 of the amount in default for loan up to
एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज। एंड एनुअल गारंटी फी जो पहले 27 चैंपियन सेक्टर्स के लिए थी उसको 2% से रिड्यूस करके 1% कर दिया गया है। एंड ये वो चैंपियन सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनिशियली इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है कि यहाँ पे फंडिंग आए, इनको ग्रो किया जा सके, एंड इसी के अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी लाया गया है, राइट। एंड अगर हम यहाँ बात करें CGSS, ये क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड अब इसको एक्सपेंड किया गया है। इसको 6 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। कोल मिनिस्ट्री ने साइन किया कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन अग्रीमेंट को। देखो ये कोल गैसिफिकेशन प्लांट बेसिकली करता क्या है, ये होता क्या है, इससे होगा क्या, इससे जो कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल होता है जैसे कोल, इसको क्या करा जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल गैस में एंड सिंक गैस, ये जो कि होती है सिंथेसिस गैस, राइट। इससे क्या होगा, एक तो जो ये क्लीनर ऑप्शन कंपेयर हो रही है, क्लीनर मतलब बेसिकली अगर जब हम इसको फ्यूल गैस को एंड सिंक गैस को यूज करेंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, कार्बन रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बर्निंग कोल। तो ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ये क्लीनर ऑप्शन रहता है, करेक्ट। तो कोल मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन अग्रीमेंट अभी साइन किया गया है अंडर कैटेगरी 2 विद सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इस स्कीम के अंडर अगर हम बात करें जो है FIS फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम फॉर कोल गैसिफिकेशन, इसके अंदर टोटल 8,500 करोड़ रुपीस यहाँ पे लाने की बात की गई। 2024 में इतना इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन किया जा सके बाय 2030। इससे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ कोल बर्निंग पे अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन होता था वो कम होता हुआ यहाँ पर हमें दिखेगा, ठीक है। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक मैं एग्जांपल देता हूं। जो ये कैटेगरी जैसे मैंने बताया अंडर कैटेगरी 2, तो ये जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 3 कैटेगरी इस प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड क्या क्या वो कैटेगरीज रहेंगी, उनकी डिटेल्स मुझे बता दो कि कौन सी कंपनीज कैटेगरी 1 में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 बताऊं तो ये गवर्नमेंट PSUs को इंक्लूड करता है एंड इनके लिए 4,050 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए गए, राइट। एंड ये जो ग्रांट है यहाँ पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराया जाएगा। सिमिलरली कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 क्या है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये वडोदरा गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड इनके द्वारा अभी एक बेसिकली जॉइंट वेंचर साइन किया गया है, या फिर हम बोलिए जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अदानी ग्रुप एंड फ्रांस बेस्ड टोटल एनर्जीज, करेक्ट। इससे क्या हुआ, AGEL अब ये वर्ल्ड की पहली रिन्यूएबल एनर्जी IPP जो वाटर पॉजिटिव हो गई है। अब आप कहेंगे सर IPP क्या है, IPP है आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। फिर सब बोलोगे सर ये वाटर पॉजिटिव क्यों है, ये वाटर पॉजिटिव क्या होता है। वाटर पॉजिटिव होता है बेसिकली जब कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस में वाटर को यूज करती है, राइट। एंड वाटर पॉजिटिव उस स्टेट को कहते हैं जब वो एंटिटी रिस्टोर कर रही है मोर फ्रेश वाटर टू द एनवायरमेंट जितना वो यूज कर रही है। मतलब अगर 1 लीटर यूज किया लेकिन वाटर पॉजिटिव हो गई, जिसका मतलब उन्होंने एनवायरमेंट को, राइट, अपने एनवायरमेंट को जो फ्रेश वाटर रिटर्न किया वो 1.2 लीटर रिटर्न किया, तो मतलब वाटर पॉजिटिव है, कम पानी यूज किया एंड ज्यादा एनवायरमेंट को फ्रेश वाटर उन्होंने रिटर्न करा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये वर्ल्ड की पहली रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन गई जो कि वाटर पॉजिटिव है। टेक अ नोट ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट। अगर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो हैं आशीष खन्ना। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, अहमदाबाद गुजरात में, एंड 2016 में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंडिया एंड चिली के बारे में। अभी एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के लिए। इससे इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, बायलेटरल रिलेशंस एनहेंस होते हुए दिखेंगे, राइट। एक और चीज, इससे पहले एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया था 2006 में इन दोनों कंट्रीज के बीच में, एंड ये टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर दिस CEPA ये एक एनहेंस वर्जन रहेगा, राइट। इससे होगा, हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ MSMEs, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, राइट, क्रिटिकल मिनरल्स, इनके ऊपर यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे। चिली की अगर मैं कैपिटल की बात करूं क्या रहेगी, सेंटियागो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। UK यूनिवर्सिटीज ये अपना कैंपस सेटअप करेंगी नवी मुंबई में, एंड जिसके लिए 1500 करोड़ रुपीस ईच यहाँ पे कैंपस को सेटअप करने के लिए यूज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रहेगी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क रहेगी फ्रॉम UK, जो अपना कैंपस यहाँ पे नवी मुंबई में एस्टेब्लिश करेंगे।
इसके बाद आ जाते हैं कर्नाटका बेस्ड स्टार्टअप, इन्होंने लॉन्च किया AI बेस्ड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। ये स्टार्टअप है SBOF एग्रोस्मार्ट। ये बेलगावी कर्नाटका बेस्ड स्टार्टअप रहेगा एंड ये ऑल इन वन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है। देखो ऑल इन वन मतलब यहाँ पे AI रहेगा, IoT डिवाइस का यूज़ रहेगा, यहाँ पे ड्रोन्स रहेंगे, राइट। आप ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं, आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा, इन्वायरमेंट क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा, राइट। एंड सैटेलाइट से डाटा मिलेगा जो कि क्लाइमेट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, राइट, आपके प्लांट ग्रोथ के बारे में यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा, कौन सी सॉइल है, कैसी सॉइल है, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे देने चाहिए, राइट। अगर पेस्टिसाइड्स हो रहे हैं या फिर पेस्ट डेवलप हो रहे हैं उनको कैसे अवॉइड करें, करेक्ट। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एप्लीकेशन रहेगा जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एंड इसी के साथ एक 24/7 मल्टीलिंगुअल चैट बॉट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। मूविंग ऑन, ITER इन्होंने अचीव किया मेजर माइलस्टोन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिया। ये जो ITER है ये क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। आई रिपीट, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है जो कि साउदर्न फ्रांस में लोकेटेड है। एंड इन्होंने एक मेजर अचीवमेंट, मेजर माइलस्टोन अचीव किया इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेन मैग्नेट सिस्टम, राइट। यहाँ पे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मैग्नेट बनाया गया है जिससे आप देखेंगे एनर्जी जनरेट करने का काम किया जाएगा। ये जो ITER है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि USA, चाइना, जापान, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन एंड अदर 30 कंट्रीज के द्वारा मिलकर इसके ऊपर काम किया जा रहा है, राइट। एंड जो ये स्टार्टअप फेज है इस प्रोजेक्ट का, इट इज़ प्रोजेक्टेड कि ये 2033 तक शुरू हो जाएगा। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 500 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा फ्रॉम जस्ट 50 मेगावाट ऑफ इनपुट। मतलब 50 मेगावाट एनर्जी दो एंड ये आपको 500 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करके देगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो कि अभी मिलान इटली में हुई। लोकेशन याद रखेंगे कहाँ पे हुई? मिलान इटली में। कौन सा एडिशन था? 58th एडिशन था ऑफ द एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे 58th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो कि है शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। एंड मसातो कांडा जो कि प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इन्होंने इनॉग्रेट किया 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। एंड इंडिया की आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमन मैम यहाँ पे प्रेजेंट थी। इवन यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $5 बिलियन कमिट करने की बात की इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ग्रांट्स एंड अदर असिस्टेंस टू इंडिया इन 2024। एक और चीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नेट इनकम अलोकेशन इन हिस्ट्री एट $1.539 बिलियन फॉर 2024। इसी के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्लेज किया एडिशनल $26 बिलियन टू फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एशिया पैसिफिक रीजन में, जिससे जो टोटल फंडिंग है फूड एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के लिए वो $40 बिलियन हो गई ओवर 2022 टू 2030 पीरियड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वाड कंट्रीज। इन्होंने पार्टनर किया टू कंडक्ट अ टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX, कहाँ पर? हवाई में, टू लॉन्च IPLN। देखो सबसे पहले 4 कंट्रीज क्वाड मतलब 4, कौन सी है वो 4 कंट्रीज जो कि क्वाड इस इनिशिएटिव का मेंबर है? तो वो कौन है? वो है आपकी, यहाँ पे आप पिक्चर में फ्लैग देख सकते हैं। तो ये 4 कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। ये USA, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये है, राइट। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA ये 4 कंट्रीज हैं, करेक्ट। एंड इनके द्वारा टेबल टॉप एक्सरसाइज कराई गई, कहाँ पर? हवाई में। एंड यहाँ पे इसके दौरान लॉन्च किया गया इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। अब देखो इससे क्या होगा, मान लो कोई एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे भी यहाँ पे इस लॉजिस्टिक से एक दूसरी कंट्रीज में कोई भी अगर हमें गुड्स या फिर हमें कोई भी मटेरियल सप्लाई करना है कि दूसरी कंट्री में ज़रूरत है उसकी, तो वो पहुंचाया जा सकेगा, राइट। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा यहाँ पर, फास्टर हेल्प पहुंचाई जा सकेगी एंड एक प्रॉपर लॉजिस्टिक नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा इन कंट्रीज के बीच में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। एक और का आपका होमवर्क रहेगा कि इन कंट्रीज के बीच में, क्वाड कंट्रीज के बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है, उस एक्सरसाइज का नाम बताओ एंड लास्ट कौन सा एडिशन उस एक्सरसाइज का हुआ था एंड लोकेशन कहां पर वो लास्ट एक्सरसाइज हुई थी। मूविंग ऑन, कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट, इनको इलेक्ट किया गया न्यू पॉप इन वेटिकन सिटी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये नए पॉप बने हैं एंड ये 267th पॉप बने हैं ऑफ कैथोलिक चर्च, राइट। ये पॉप लियो 14 रहेंगे, राइट। एंड ये पहले पॉप हैं, फर्स्ट पॉप फ्रॉम USA, राइट। पॉप फ्रांसिस को इन्होंने सक्सीड किया। पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया था 21 अप्रैल 2025 को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया अभी रिसेंटली। ये डायरेक्टर हैं ऑफ CBI एंड मई 26 तक इनको एक्सटेंशन मिल गया है।
इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने डिलीवर किया अरनाला को, जो कि इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रहेगा। इंडियन नेवी को इनके द्वारा डिलीवर किया गया। ऐसे 8 डिलीवर किए जाएंगे, जिसमें से ये पहला वर्जन रहेगा, मतलब ये फर्स्ट रहेगा। एक और चीज, GRSE को इस अरनाला की डिजाइनिंग के लिए एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2022 में। उस अवार्ड का नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अवार्ड था रक्षा मंत्री अवार्ड, राइट, इस अरनाला के डिजाइनिंग के लिए, राइट। एंड इसको मोस्ट साइलेंट शिप भी बोला जाता है, मोस्ट साइलेंट शिप, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस अरनाला। अगर हम बात करें अरनाला की, तो ये 77.6 मीटर लॉन्ग है, 10.5 मीटर वाइड रहेगा एंड इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वम एआई। इन्होंने लॉन्च किया बुलबुल V2, जो कि एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल रहेगा विद 11 इंडियन लैंग्वेजेस, राइट। 11 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट, आप ये लैंग्वेजेस देख सकते हैं। ये टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल रहेगा बुलबुल V2। सर्वम एआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एक स्टार्टअप रहेगा, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑर्बिटरी के ऊपर। फॉर्मर F1 ड्राइवर एंड ले मांस चैंपियन जॉशन रिचर्ड मास, इनका रिसेंटली निधन हो गया। 78 की एज में निधन हुआ। केन्स फ्रांस में निधन हुआ। 1946 जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बुक की, जो कि है द जॉनसन एंड जॉनसन्स फाइल, द इंडियन सीक्रेट्स ऑफ अ ग्लोबल जायंट। ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन है इनटू वन ऑफ द इंडिया सिग्निफिकेंट मेडिकल डिवाइस कंट्रोवर्सीज। कॉनियन शेरिफ M के द्वारा, जो कि नेशनल हेल्थ एडिटर हैं एट इंडियन एक्सप्रेस, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। जगरनॉट बुक्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। टाइम ऑफ रिमेंबरेंस एंड रिकंसाइलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 8 से 9 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। 1945 में ये खत्म हो गई थी एंड 1945 की हम 80th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं इस वर्ल्ड वॉर 2 की एंड होने की। इस डे की बात करें तो 2005 में इस डे को अगर हम बात करें तो 2005 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था ऑन द 60th एनिवर्सरी ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर 2, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर। सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द आर्म्स। तो इंडिया सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ आर्म्स। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया, यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे था, क्योंकि यूक्रेन में भी वॉर भी चल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 12वां एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि किर्गिस्तान में हुई, उसका क्या नाम है, वो है खंजर 8th, ये खंजर 12 सॉरी नॉट 8, ये 12th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। 10 से लेकर 23 मार्च तक हुई है एक्सरसाइज। नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेट एंड 4था एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज हुई है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट अभी सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ एंड क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025। तो कितना ग्रेन रिजर्व प्रोजेक्टेड है, यह है 869.3 मिलियन टन का। नेक्स्ट इंडिया वॉज इलेक्टेड टू लीड द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जो कि चेयर किया गया एम्बेसडर शंभू एस कुमारन के द्वारा इन वियना। तो इंडिया ने चेयर किया ये 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट एज पर द सेबीज न्यू रेगुलेशंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, IPOs अनाउंस्ड इन मार्च, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर द ऑफर फॉर सेल पोर्शन ऑफ द टोटल IPO साइज, तो वो है 20%। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 9th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियनशिप ट्रॉफी इन मार्च 2025, जो कि दुबई UAE में हुई। तो इनमें से देखें ऑप्शन A एंड B से ये C गलत है। C कह रहे हैं जो इवेंट एम्बेसडर थे वो वीरेंद्र सहवाग, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन एंड टिम साउथली थे। तो थे, बिल्कुल थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग की जगह कौन थे, वो हैं वीरेंद्र सहवाग की जगह शिखर धवन। ठीक है, अब C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया चापचूर कूट फेस्टिवल, तो ये मिजोरम के द्वारा सेलिब्रेट किया गया चापचूर कूट फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं
इन मार्च नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया टू डेवलप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहाँ पे? वाराणसी यूपी में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, राइट। 150 एकड़ की साइट को इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, NH7 के ये साथ में है। नेक्स्ट, कुहू फाइनेंस बैक्ड बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल, इन्होंने सिक्योर किया RBI लाइसेंस मार्च 2025 में टू फंक्शन एज अ NBFC, राइट, जो एनेबल करेगा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपीज़। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म डाटा, किस कंट्री ने टॉप किया इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दुबई, जो कंट्रीब्यूट कर रही है 21.5% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लोज वर्थ 3.018 इन बिलियन, राइट, 3.018 बिलियन। तो अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डाटा, किस कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पर? ये टॉप किया है हमारी कंट्री इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू मैन्युफैक्चर सप्लाई 200 डायमंड NG नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो ये डिलीवर किए जाएंगे किसको? एरो क्लब ऑफ इंडिया को। एंड यहाँ पे यही शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हजार पायलट्स को भी यहाँ पे ट्रेन करने का काम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग, इनको अवार्ड किया गया इन मार्च 2025 टू पायनियर रीइंफोर्समेंट लर्नर्स। कौन कौन है? वो हैं डॉक्टर एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सुटॉन। इन दोनों को यहाँ पे ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट दैट रिसीव द 8th कॉन्जिक्यूटिव एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो कौन सा वो एयरपोर्ट रहेगा? वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इन मार्च अतुल कुमार गोयल, इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, टेकिंग ओवर फ्रॉम हुम, इन्होंने किससे लिया? वो है सुनील मेहता से। ये इन्होंने सक्सीड किया सुनील मेहता को, अतुल कुमार गोयल ने। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर नासा ने लॉन्च किए 2 मिशन, फेयरएक्स मिशन एंड पंच मिशन फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन फ्लोरिडा USA। इसमें से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट बताना है, तो A तो सही है, B गलत है, C गलत है। पंच मिशन जो था ये 4 सैटेलाइट थी, सन के कोर को नहीं, सन के आउटर सरफेस कोरोना को स्टडी करने का काम करेगा, एंड प्लेनेट के मैग्नेटोस्फेयर नहीं, सोलर विंड्स को स्टडी करने का काम करेगा। वहीं पे ये जो मिशन थे इनको स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो नहीं, कैनेडी स्पेस सेंटर से नहीं, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया था, कैलिफोर्निया USA से। नेक्स्ट, विच नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सस्पेंशन वॉज लिफ्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन मार्च फॉलोइंग इट टू रिज्यूम इट्स एक्टिविटीज़। तो वो है किस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ग्रेन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय इंडिया अंटिल 31st of March टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक मार्केट। तो उड़द दाल के यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट वाज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स इन इंडिया ऑन 30 सितंबर 2024 एज पर द नेशनल हाउसिंग बैंक्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024। तो यह है 33.53 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू साइन अ सेंटर स्टेट पार्टनरशिप अंडर द बायो E3 पॉलिसी विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मार्च 2025। तो वो असम स्टेट रहेगी, राइट, पहला सेंटर स्टेट पार्टनरशिप रहेगी यहाँ पे बायो 3 के अंडर। नेक्स्ट, नेम द लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार सिस्टम दैट वाज रिसेंटली प्रोक्योर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2906 करोड़ रुपए की डील थी विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये रहेगा अश्विनी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर RBI's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड है विद इन द 1 year ऑफ द रिकॉग्निशन? वो है 2 करोड़ रुपए की मिनिमम नेटवर्थ। नेक्स्ट, ऑन मार्च इंडियाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस Mark 1 सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट फायर किया द डैश अस्त्रा नियर द ओडिशा। ये जो अस्त्रा मिसाइल है ये क्या है? ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाउस होल्ड्स हैड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल अंडर PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना एज ऑफ 10th मार्च। तो 10 लाख यहाँ पे घरों पे सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों एक और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। नेम द न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया, जिसने 1 साल पूरा किया इन मार्च एंड विल रिमेन फ्री टू यूज टिल मार्च 2026 टू हेल्प मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। वो है PB शबद।
नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द फिनटेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्कल को फीचरिंग इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, ताकि प्रमोट की जा सके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अलाउइंग द यूजर्स टू डेलीगेट यूपीआई पेमेंट अथॉरिटी टू ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, राइट। डेलीगेट पेमेंट्स होंगी, फुल डेलीगेशन मिलेगी, पार्शियल डेलीगेशन मिलेगी, राइट। या फुल पेमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ लिमिट तक ही पे कर सकेंगे। तो किस फिनटेक कंपनी को ने लॉन्च किया था ये यूपीआई सर्कल? ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिशन अमृत सरोवर अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आप ये देख सकते हैं, ड्यूरिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑफ द की प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पूछा जा रहा है ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेवलप किया गया है एंड ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर आता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? एंड ऑफिशियली डेजिग्नेटिंग इंडिया एज द होस्ट कंट्री फॉर द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटरीट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हेडक्वार्टर अग्रीमेंट किसके साथ? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ, IBCA के साथ, राइट। एंड इस IBCA के अंडर 8 बिग कैट्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की गई एंड अब इंडिया यहाँ पे होस्ट कंट्री रहेगा फॉर सीएबल फ्यूचर के लिए फॉर दिस IBCA एंड इसी के लिए इंडिया ने 150 करोड़ रुपए भी यहाँ पे अलोकेट किए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया GI टैग या फिर अवार्ड किए GI टैग सर्टिफिकेट्स टू 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी। इससे हुआ क्या? अब यूपी वो स्टेट बन गई है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स जो 77 पे आ जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु विद 69 GI टैग्स। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसमें से GI टैग नहीं मिला है, जिसको GI टैग नहीं मिला है यूपी से? तो गमोसा को GI टैग नहीं मिला है यूपी से। ये गमोसा प्रोडक्ट है कहाँ पर, क्या है, कौन सी स्टेट का एंड क्या इसको GI टैग मिला है या नहीं मिला, ये आप नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट, उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जिसको इनॉग्रेट किया गया बाय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा इन बेलोरा विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अलायंस एयर। तो वो है अमरावती एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज इन्होंने अग्री किया टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स टू कॉम्बैट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। किस इंडस्ट्री में? तो शिपिंग इंडस्ट्री में रहेगा ये। नेक्स्ट, identify the Indian bank that featured in the S&P Global Market Intelligence latest annual ranking of the world's 100 largest banks by assets released in April। तो कौन सी हैं जो दो आई हैं? वो हैं SBI एंड HDFC बैंक यहाँ पे लिस्ट किए गए। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 लिस्ट, जो कि न्यूयॉर्क USA बेस्ड टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई। तो इनमें से सभी सही हैं एक्सेप्ट फिफ्थ जो कि है अमेरिकन एक्टर डेमी मोरे। ये फीचर किए गए लीडर्स कैटेगरी में यहाँ पे, तो नहीं, ये लीडर्स कैटेगरी में नहीं, आइकन्स कैटेगरी में यहाँ पे फीचर किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन अप्रैल इंक्लूडेड 7 इंडियंस आउट ऑफ द टोटल 116 लीडर्स, जो कि 48 से कम है एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस फील्ड्स जिसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स आते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट। तो इनमें से कौन से इंडियंस हैं जो इस लिस्ट में फीचर नहीं करते हैं? वो है विजय शेखर शर्मा, बाकी सभी यहाँ पे फीचर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन अप्रैल फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्रिस जेंकिंस। तो वो है डोनाल्ड रुकारे। नेक्स्ट आ जाते हैं पहला 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया जाएगा इंडिया में, जो कहाँ पर होगा? कलपक्कम इन तमिलनाडु। अब देखो इससे होगा क्या कि जो वेस्ट जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी से, उस वेस्ट को यहाँ पे कम कर दिया जाएगा एंड उससे मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है कि हम 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें न्यूक्लियर रिसोर्सेज से वेरी सून। एंड एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका इंडिया का जो इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 8.18 गीगावाट की है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के साथ फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 इन अप्रैल 2025। तो वो है पेंटागन प्रेस। नेक्स्ट, इन अप्रैल महाजैन को इन्होंने एक MOU साइन किया रशिया के रोसाटॉम के साथ फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूजिंग विच टाइप ऑफ फ्यूल। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे इसमें थोरियम फ्यूल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब थोरियम को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्होंने फोटो ली मोहम्मद अजयोर की। ये एक गाजन बॉय है, राइट, जिनके दोनों आर्म चले गए थे ड्यूरिंग एन इजरायली स्ट्राइक जो कि पैलेस्टीनियन गाजा में हुई सिटी में 2024 मार्च के महीने में हुई थी। इसके दौरान इनके दोनों आर्म्स यहाँ पे कट गए थे, राइट, मतलब डैमेज हो गए थे। तो कौन है वो कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर? वो है समर अबू इलॉफ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर डूरो मकॉड जो 61 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं एंड अकेडमिशियन हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो सर्बिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल फॉर्मर डैश सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का। कहाँ पे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो पूछा जा रहा है ये फॉर्मर क्या है? ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, इन अप्रैल मेराबाई चानू, राइट, इन ये जो कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है एथलीट्स कमीशन का। किस गवर्निंग बॉडी का? तो ये एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट, उस थर्ड एडिशन ऑफ मीटोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम का नाम बताओ जिसको कंडक्ट करा गया इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 14 अप्रैल टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो थर्ड एडिशन का नाम क्या रहेगा? मेज्ञान 25। नेक्स्ट, इन अप्रैल बीजिंग इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई जो मार्क करती है कौन सा एडिशन और विच एनिवर्सरी ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन। तो ये 30वां एनिवर्सरी थी बीजिंग डिक्लेरेशन का एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो कि हाईलाइट करती है जेंडर एंड क्लाइमेट इंटीग्रेशन के बीच में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंट्रल रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लॉन्च किया ATM मशीन ट्रेन्स में लॉन्च की गई है, AC कोचेज में ये लॉन्च की गई है। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो ट्रेन है जिसमें इसको लॉन्च किया गया, तो वो है पंचवती एक्सप्रेस। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब फ्रंटलाइन कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ये अल डाफरा एयर बेस पे अराइव करती है UAE में ताकि ये पार्टिसिपेट कर सके इन विच एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में इसको पार्टिसिपेट किए के लिए यहाँ पे गई जो कि UAE एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे गई है तो कौन से एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा इस एक्सरसाइज में? MiG-29 का एंड जैगुआर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द डोनेशन ऑफ 2 शिंकेनसेन ट्रेन सेट जो कि है E5 सीरीज एंड E3 सीरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा यहाँ पे इंडिया को गिफ्ट की गई है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे ये यूज़ की जाएंगी एंड ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, टेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी ताकि इंडिया इनकी री इंजीनियरिंग करके एक तो पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सके एंड इसके लिए ट्रेन्स भी यहाँ पे फिर इंडिया मेक इन इंडिया के अंडर बनाई जा सके। 320 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द जेदा सर्किट इन जेदा सऊदी अरेबिया। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेसलर जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द हॉस्पिटल दैट वाज रैंक्ड 97th इन द 2024 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल 25 कंडक्टेड बाय न्यूज़वीक मैगजीन इन कोलैबोरेशन विद स्टैटिस्टिका इनकॉर्पोरेशन। तो उस हॉस्पिटल का नाम बताओ। वो है एम्स दिल्ली, राइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इनको रैंक किया गया 97th इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2025 इंडिया ने सरपास किया चाइना को विद अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स। तो 82 रामसर साइट्स के साथ यहाँ पे इंडिया ने चाइना को सरपास किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया क्रूज ऑपरेशंस फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एट बेलाड पियर इन महाराष्ट्र। पूछा जा रहा है, मेंशन द पोर्ट फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स वर्थ 5,700 करोड़ रुपीज वर साइन ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो कौन से पोर्ट के लिए? वो है वाधवन पोर्ट के लिए। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंडक्ट किया इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इन कोलैबोरेशन विद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूजिंग अ 4 करोड़ मल्टी कोर फाइबर इन अप्रैल। इससे कम्युनिकेशन हमारी बेटर होती हुई दिखेगी एंड क्वांटम फील्ड में इंडिया की रिसर्च इससे बढ़ती हुई दिखेगी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द एज अबव विच माइनर्स को अब अलाउ कर दिया गया है RBI के द्वारा कि वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं,
सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को वो कर सकते हैं। तो 10 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स ये काम कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इन अप्रैल विच होली ऑन सब्सिडरी फॉर टाटा सन, इन्होंने 750 मिलियन यूरोज या फिर 990.79 मिलियन डॉलर का 2 ईयर का ब्रिज लोन साइन किया टू कंस्ट्रक्ट यूके का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी। देखो ये जो ब्रिज लोन होता है ये क्या होता है बेसिकली, ये पहली चीज़ तो याद रखेंगे, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल एक नई चीज़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एंड एक प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, मान लो आपने ये खरीद लिया एंड आप इसको बेच रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो पैसे की फंडिंग की रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आपका ब्रिज लोन, राइट। एंड किसको लिया है, किसने लिया है, एग्रेतास एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये ब्रिज लोन लिया गया है। यहाँ पे ये 2 साल के लिए लिया गया है ताकि इस यूके की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025वां एडिशन ऑफ द वाइजडेंस क्रिकेटर्स एल्मनैक रिवील्ड द 5 वाइजडेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई, इसमें से वो क्रिकेटर्स में से वो कौन से नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें इनमें से हैरी ब्रूक वो नहीं है, बाकी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डैश एमर्ज एज द इंडियाज 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड हिट विद $43 बिलियन। तो यूएई नहीं, करेक्ट, सऊदी अरेबिया इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया विद $43 बिलियन ट्रेड। एंड इवन अभी जब पहलगांव अटैक हुआ था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की ही विजिट पे थे, फिर वहाँ पे वो कट शॉर्ट करके अपने विजिट को इंडिया आए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 2/800 का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया जा सके एट चंद्रापुरा थर्मल पावर स्टेशन इन झारखंड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड। एंड 16,500 करोड़ की लागत से इसको स्टैब्लिश किया जाए। Let's move to the homework section, students. Our first question is, tell me which is India's 58th tiger reserve and name the location where is it located. Second question, tell me recently with Starlink which 2 companies has partnered to provide satellite internet in India. Third question, tell me recently Ayushman Bharat scheme was expanded to Delhi. What is the cover under Ayushman Bharat scheme? What is the cover of insurance, right? And name, tell me the scheme also. Explain this scheme in the comment. I'll be looking at the answers. Fourth question, tell me recently which Indian naval ship participated in the Mauritius National Day celebration. I repeat, in the Mauritius National Day celebration for 2025. Name that Indian naval ship that took part in that day. Correct? Then apart from this, tell me recently who has been appointed as the brand ambassador for Federal Bank, right? She's an actress. I'll give you that hint. Correct? So these are your important homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.